نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہنور علی خان اور میں ہوں ذیشان ملک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے بلیٹن کا آغاز ایک اہم خبر سے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ مئی کا دن یعنی 9 مئی کا دن سیاہ باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ گزشتہ روز جو ہوا اور جو صورتحال پیش آئی، جس طرح سے شرپسندی کی گئی PTI کے کارکنان کی جانب سے، اس کے حوالے سے اب ISPR کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ 9 مئی 2023 کا دن سیاہ باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ گزشتہ روز نیب کے وارنٹ پر گرفتاری ہوئی PTI چیئرمین عمران خان کے، لیکن اس کے بعد جو رد عمل آیا ان کے کارکنان کی جانب سے، جس طرح شرپسندی کی گئی، اس پر ISPR کا بیان سامنے آیا ہے۔ بات کریں گے نمائندہ خصوصی احمد منصور سے۔ احمد منصور، کیا کہا گیا ISPR کی جانب سے؟ دیکھیں، ایک اور اہم اعلامیہ جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی کا دن ایک سیاہ باب کی طرح یاد رکھا جائے گا۔ PTI کو نیب کے اعلامیہ کے مطابق کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے قانون کے مطابق حراست میں لیا گیا۔ اس گرفتاری کے فوراً بعد ایک منظم طریقے سے آرمی کی املاک اور تنصیبات پر حملے کرائے گئے اور فوج مخالف نعرے بازی کروائی گئی۔ ایک طرف تو یہ شرپسند عناصر عوامی جذبات کو اپنے محدود اور خود غرض مقاصد کی تکمیل کے لیے بھرپور طور پر ابھارتے ہیں، اور دوسری طرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالتے ہوئے ملک کے لیے فوج کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتے نہیں تھکتے، جو کہ دوگلے پن کی مثال ہے۔ ISPR نے کہا ہے کہ جو کام ملک کے اب بھی دشمن 75 سال نہ کر سکے، وہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اوڑے ہوئے اس گروہ نے کر دکھایا ہے۔ فوج نے انتہائی تحمل، بردباری اور ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور اپنی سانس کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہوئے ملک کے وسیع تر مفاد میں انتہائی صبر اور برداشت سے کام لیا ہے۔ فوج کی طرف سے، ISPR کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مضموم منصوبہ بندی کے تحت پیدا کی گئی اس صورتحال سے یہ گھناؤنی کوشش کی گئی کہ آرمی اپنا فوری رد عمل دے جس کو اپنے مضمون سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ آرمی کے میچور ریسپانس نے اس سازش کو ناکام بنایا۔ ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ اس کے پیچھے پارٹی کی کچھ شرپسند لیڈرشپ کے احکامات، ہدایات اور مکمل پیشگی منصوبہ بندی تھی اور ہے۔ ISPR نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سہولت کار، منصوبہ ساز اور سیاسی بلوائی ان کاروائیوں میں ملوث ہیں، ان کی شناخت کر لی گئی ہے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی، اور یہ تمام شرپسند عناصر اب نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ ISPR نے یہ بھی کہا ہے کہ فوج بشمول تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے، فوجی اور ریاستی تنصیبات اور املاک پر کسی بھی مزید حملے کی صورت میں شدید رد عمل دیا جائے گا، جس کی مکمل ذمہ داری اسی ٹولے پر ہوگی جو پاکستان کو خانہ جنگی میں دھکیلنا چاہتا ہے اور برملا اور متعدد بار اس کا اظہار بھی کر چکا ہے۔ کسی کو بھی عوام کو اکسانے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ تنبیہ بھرا ایک عام اعلامیہ ISPR کی طرف سے افواج پاکستان کے ترجمان ادارے کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ جی اچھا، بالکل ٹھیک ہے۔ اس پر جو سخت الفاظ وہ سامنے آ رہے ہیں، یقیناً آنے بھی چاہیے۔ گزشتہ روز جو ہوا وہ کسی طور پر بھی ہمارے لیے فخر کی بات نہیں تھی، بلکہ شرم کا ہی مقام تھا۔ لیکن جو آڈیو سامنے آئے ہیں، اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ کون کون ملوث تھا، ابھارنے میں کون کون پیچھے تھا، تو ان کے خلاف کارروائی کیجیے کہ ان میں سیکنڈ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ جی بالکل، اگر میں اس اعلامیہ کو ملا کر دیکھوں تو یہ جو ثبوت سامنے آنے کے بعد، ہر چیز کرسٹل کلیئر ہونے کے بعد ہی یہ ایک باضابطہ آفیشیل اعلامیہ سامنے آیا ہے۔ جو بات آپ نے کی ہے، آڈیوز بھی موجود ہیں، فوٹیجز بھی موجود، ایک منظم طریقے سے احتجاج کا جو مرکز تھا وہ فوج کا ادارہ، افواج پاکستان کے افسران ہیں، ان کے گھر، املاک، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور مقصد اس میں بھی واضح ہے، یہی تھا جو ثابت بھی ہو چکا ہے کہ مقصد یہی ہے کہ ویڈیوز بنے، فوٹیجز بنے۔ ساتھ رہے گا احمد منصور، دفاعی تجزیہ کا۔ اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ گزشتہ روز جو واقعہ پیش آیا اس میں احتجاج کی آڑ میں غنڈہ گردی کی گئی۔ PTI کے شرپسندوں نے احتجاج کے نام پر قانون ہاتھ میں لیا۔ جناح ہاؤس لاہور میں توڑ پھوڑ کی، عمارت کے فرنیچر سامان کو آگ لگا دی گئی، جبکہ قیمتی سامان کو لوٹ لیا گیا۔ ریحان طارق ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، جو کہ اسی مقام پر ہیں جہاں یہ سب کچھ کیا گیا۔ ریحان، کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں اس وقت جناح ہاؤس یا جسے کور کمانڈر لاہور ہاؤس کہا جاتا ہے اس میں موجود ہوں۔ یہاں جس تباہی کی داستان گزشتہ روز رقم کی گئی ہے اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن جو طریقہ واردات تھا، جس انٹری گیٹ سے شرپسند گروہ یہاں انٹر ہوا، جس کا تعلق ایک خاص سیاسی جماعت سے ہے، وہ یہ گیٹ ہے۔
ये कोर कमांडर हाउस लाहौर का मरकजी दरवाज़ा है। इसके बिल्कुल साथ जो है वो एक्सचेंजेस लगी हुई थी, टेलीफोन ऑपरेटर्स बैठते हैं, और इसके बिल्कुल राइट साइड पे गार्ड रूम है। दोनों आपको नजर आतिश दिखाई दे रहे हैं। मैं आगे बढ़ूंगा और जहां जहां मैं जाऊंगा वहां वहां रकम तबाही की दास्तान मैं आपके सामने रखूंगा। यहाँ पर थेफ्ट भी हुआ है, यहाँ पर मौजूद तारीखी इमारत को बुरी तरह से मुतासर भी किया गया है। अगर इस इमारत की तारीखी अहमियत पर रोशनी डाली जाए तो ये कायदे आज़म रेजिडेंसी के तौर पर भी, यहाँ फाउंडर ऑफ द नेशन बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जना रिहाइश पजीर भी थे, और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस इमारत को फ़ौज को ट्रांसफ़र किया था या फ़ौज के हवाले किया था। मैं आगे बढ़ता हूँ और एक तस्वीर मुझे दिखाई दे रही है। ये बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की तस्वीर है, और उसके नीचे लिखा हुआ है अ पेज फ्रॉम कायदे आज़म पासपोर्ट, यानी बानी पाकिस्तान के पासपोर्ट से एक सफ़ा है जो मेरे कैमरामैन अंजुम आपको दिखा सकते हैं। ये तस्वीर देख के मुझे कहना पड़ता है कि सहर जो आई तो लाई उसी चिराग की मौत जो रात भर रहा जलता उसी सहर के लिए। यानी बानी पाकिस्तान के शायद तसव्वुर में भी नहीं होगा कि जिस मुल्क जिस कौम का ख्वाब वो देख रहे थे, जिसके लिए वो तगोदौ कर रहे थे, आज उन्हीं के मुल्क में और उन्हीं की रेजिडेंसी के अंदर इस तरह की दास्तान रकम होगी। जिस तरह की ये इमारत है इसको प्रिजर्व किया गया था क्योंकि तारीखी अहमियत से इंतहाई इंपॉर्टेंस की हामिल है। और मुझे बताया गया जब मैं यहाँ आया कि यहाँ पर कायदे आज़म से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सारी चीज़ें, उनका पियानो, वायलिन और बहुत सी चीज़ें पर मौजूद। इमारत के अंदर एंटर हुआ हूं तो एक हीट महसूस हो रही है, हिद्दत है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो फायर फाइटिंग का प्रोसेस है उसके बाद अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड होगा कूलिंग के प्रोसेस के लिए भी, क्योंकि अभी तक ज़मीन से भी और दीवारों से भी अच्छी खासी हिद्दत महसूस हो रही है। आप ये देख सकते हैं ये फायर प्लेस है। इस फायर प्लेस को जिस तरह से इसका हुलिया बिगाड़ा गया है, दीवारें आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी पुरानी इमारत थी तारीखी एतबार से भी, और इसकी इमारत से भी जो तारीखी विरसा अगर इसको कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा क्योंकि तारीख छलक रही है। और आप छत पर अगर निगाह डालें तो छत भी बुरी तरह से मुतासिर है। यानी हर तरफ जब आग फैली है तो उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि उसने पूरी इमारत को अपनी लपेट में लिया। और जहाँ जहाँ हम एंटर हो रहे हैं, ज़रा आगे बढ़ते हैं, ये देखिए कि ये एक कॉरिडोर है, और कॉरिडोर में भी राइट लेफ्ट ऊपर नीचे छत से लेके ज़मीन तक हर चीज़ यूँ दिखाई दे रहा है कि वो आग की लपेट में रही है। और जहाँ कहीं लोग पहुँच सके हैं, जहाँ कहीं उनकी एक्सेस थी, वहाँ वहाँ तोड़फोड़ की गई है। ज़रा अगर एंटर क्विकली अगर आगे आए तो मैं आपको दिखाऊं कि ये एक और इस वक्त ड्राइंग रूम नज़र आ रहा है मुझे। एंटर हो तो मुझे देखा है कि यहाँ पर जिम का इक्विपमेंट भी पड़ा हुआ है, यानी ये जिम था और उस जिम के अंदर जो पड़े हुए जितने इक्विपमेंट हैं उन सबको बुरी तरह से डैमेज किया गया है। बिल्कुल मलबा है ये इस वक्त, और इस मलबे को उठाने का अमल जारी है। ऊपर फानूस लगा हुआ है, आप देखिए कि लाइट्स जो है वो भी यहाँ पर नहीं है, पंखे भी बुरी तरह से मुतासिर है। यानी बड़ी इस पर तुर्रा ये कि मुझे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो लोग आए थे उनमें ट्रेंड लूटर्स भी थे, यानी यहाँ अच्छा खासा थेफ्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि ज्वेलरी यहाँ पर नहीं है, बहुत सारे कीमती नवादरात यहाँ पर मौजूद थे वो नहीं है, यानी दिन की रोशनी में यहाँ एक डकैती हुई है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लूटने वाले लूट मार मचा के ले गए हैं। अब ये मंजर देख के एक सादा सा सवाल जो पर्दा फिक्र से टकराता है वो ये है कि इतना सब कुछ हो गया, इतना रिस्ट्रेंट, इतना तहम्मुल, इतने सब्र का मुजाहरा क्यों किया गया? तो जब हमारी यहाँ पर मौजूद हुकाम से बात हुई है तो वो ये कह रहे हैं कि पाक फौज कभी भी ये नहीं देख सकती कि फौज और अवाम एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएं। यहाँ पर रैपिड रिस्पांस फोर्स के एहलकार भी मौजूद थे, लेकिन उनको ये इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने को जो है तहम्मुल का मुजाहरा करना है, आपने रिएक्ट नहीं करना है। अवाम और फौज के माबैन जो खलीज पैदा करने की मुनज़्ज़म कोशिश और साजिश की जा रही है उसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अब यहाँ से निकलते हैं और निकलते हुए हम देखते हैं कि बिल्कुल सामने एक लॉन मौजूद है। मुझे ये बताया जा रहा है कि इस इमारत के बिल्कुल पीछे बैक साइड पे ये देखिए, ये भी एक शोकेस थी। इस शोकेस में जो कुछ पड़ा हुआ था हमारी इत्तलात के मुताबिक उसको यहाँ से जो एहतजाजी मुजाहिरीन है, एहतजाजी मुजाहिरीन क्या शरपसंद अनासिर ही कहेंगे, वो लूट मार करके यहाँ से ले गए हैं। इसकी जो बिल्कुल बैक यार्ड के अंदर वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बताए जा रहे हैं कि वहाँ पर कुछ इंतज़ामी लोगों के दफातर मौजूद थे, वो दफातर भी बुरी तरह से मुतासर हैं। फिर वहाँ पर जो एक कार पार्किंग थी, उस कार पार्किंग के अंदर मौजूद जितनी गाड़ियाँ थी वो भी बुरी तरह से डैमेज हुई हैं, और फिर उन गाड़ियों को सीधी के कहीं शिफ्ट किया है। यहाँ से अगर हम आगे निकले तो हम देख सकते हैं कि इस तरफ भी इसी इमारत से जो मुल्हिका हिस्से हैं वो बुरी तरह से डैमेज हैं, मुतासर। यानी कोई भी एक ऐसा हिस्सा असल हालत में वापस आ पाएगी या नहीं आ पाएगी ये तो एक सवाल है, लेकिन जिस अंदाज में ये सारा अमल हुआ है ये अपने अंदर बहुत सारे सवाल छोड़ गया है कि
ये हमारे मुल्क के अंदर जिसका ख्वाब बानी पाकिस्तान ने देखा था, कायद आज़म की अपनी रेजिडेंसी के अंदर जिनाह हाउस के अंदर जो कुछ हो रहा है, यकीनन कायद की रूह ये देखकर खुश नहीं होगी, तड़प रही होगी। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। अभी चरागे सरेरह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गरानी शब में कमी नहीं आई, हयात दीदा वो दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूं। कोर कमांडर हाउस के मनाज़र आपने देखे, बहुत शुक्रिया रेहान आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि फितने की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में कहीं भी अवाम बाहर नहीं निकले। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ का ट्वीट, कहती हैं सिर्फ वो तरबियत याफ्ता बलवाई बाहर आए जिन्हें पिछले कई माह से जमान पार्क में इसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। नए सामने आने वाली ऑडियो से साबित हो गया कि इस तमाम तकरीब कारी का मंसूबा खुद इमरान खान ने बनाया था। मरियम नवाज ने इल्जाम आयद किया कि जिन तंसीबात को निशाना बनाया जाना था वो पहले ही मार्क की जा चुकी थी। हुकूमत इन शरपसंदों से किसी किस्म की रियायत नहीं करेगी। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि फितने की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में कहीं भी अवाम बाहर नहीं निकले। उनकी जानिब से कहा गया कि सिर्फ वो तरबियत याफ्ता बलवाई बाहर आए जिन्हें पिछले कई माह से जमान पार्क में इसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। कहती हैं सिर्फ वो तरबियत याफ्ता बलवाई बाहर आए जिन्हें पिछले कई माह से जमान पार्क में इसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। नए सामने आने वाली ऑडियो से साबित हो गया कि इस तमाम तकरीब कारी का मंसूबा खुद इमरान खान ने बनाया था। मरियम नवाज ने इल्जाम आयद किया कि जिन तंसीबात को निशाना बनाया जाना था वो पहले ही मार्क की जा चुकी थी। हुकूमत इन शरपसंदों से किसी किस्म की रियायत नहीं करेगी। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि फितने की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में कहीं भी अवाम बाहर नहीं निकले। उनकी जानिब से कहा गया कि सिर्फ वो तरबियत याफ्ता बलवाई बाहर आए जिन्हें पिछले कई माह से जमान पार्क में इसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा किया, जहां उन्होंने शहर में मुजाहिरों की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब को सेफ सिटी कैमरों से शहर की सूरत हाल दिखाई गई। कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रजा सरवर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए दाखिला मियां शकील वज़ीर आला भी वज़ीर आला पंजाब के साथ मौजूद थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा किया, जहां उन्होंने शहर में मुजाहिरों की सूरत हाल का जायजा लिया। इसी पर बात करेंगे, अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर पंजाब लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग के बाद जो है वो उन्होंने फौरी तौर पर सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा किया। वहाँ पर सेफ सिटी के शहर भर में लगाए गए कैमरों की मदद से शहर में जो सियासी सूरत हाल है और हंगामों के हवाले से, एहतजाज के हवाले से, उस पर वज़ीर पंजाब को जो है ब्रीफ किया गया। जबकि कल जो एहतजाज किया गया था तहरीक इंसाफ के जो शरपसंद अनासर थे, तो उस हवाले से भी उन्होंने तमाम तक फुटेज जो है उनको दिखाएगी और कैमरों की मदद से तमाम जगह पर जो सूरत हाल पैदा हुई और जहाँ जहाँ सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब को जो है वो आगाह किया गया। और इस मौके पर सेफ सिटी के दौरे के दौरान कायम मुकाम चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और IG पंजाब जो है वो वज़ीर आला पंजाब के साथ मौजूद थे। तो तमाम तर सूरत हाल के हवाले से वज़ीर आला पंजाब को आगाह किया गया और वज़ीर आला पंजाब ने हदायत दी कि तमाम तर जो रिकॉर्ड है उसको फौरी तौर पर महफूज किया जाए और जहाँ जहाँ अगर कैमरों को नुकसान पहुँचाया तो वो फौरी तौर पर ठीक किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर शाह का शाह महमूद कुरैशी के बयान पर रद्द-ए-अमल। शाह महमूद कुरैशी को पंजाब में फौज तलब करने पर हैरत हुई है। शाह महमूद को उस वक्त हैरत होनी चाहिए थी जब PTI वालों ने जिन्ना हाउस को नजर आतिश किया। ये काम तो भारत वाले भी नहीं कर पाए जो PTI कारकुन अपनी क़यादत के कहने पर कर रहे हैं। PTI कारकुनों ने पेशावर में रेडियो पाकिस्तान पर भी हमला किया। दहशतगर्द कार्रवाइयों और नुकसानात का उन्हें हिसाब देना होगा। लाहौर बोर्ड के कल और परसों होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। केमिस्ट्री का पर्चा 11 मई और इस्लामियत का पर्चा 12 मई को लिया जाना था। तो लाहौर बोर्ड के कल और परसों जो इम्तहानात होना थे वो मुलतवी कर दिए गए हैं। 11 मई को केमिस्ट्री का पेपर होना था, जबकि 12 मई को इस्लामियात का पर्चा लिया जाना था, लेकिन अब इन्हें मुलतवी कर दिया गया है।
मुल्क में कैम्ब्रिज के कल होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। ब्रिटिश काउंसिल ने 11 मई के इम्तिहानात मुलतवी किए हैं। मुल्क में कैम्ब्रिज के कल होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए, जबकि ब्रिटिश काउंसिल ने 11 मई के इम्तिहानात मुलतवी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट फवाद चौधरी ने हिफाजती जमानत पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करवाए सुप्रीम कोर्ट, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद पुलिस सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मौजूद है। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने रुजू किया है सुप्रीम कोर्ट से, दरख्वास्त दायर की है हिफाजती ज़मानत पर अमल दरामद करवाने के लिए, और इसके 12 मई तक हिफाजती ज़मानत है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। अमानत कशकोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत, आगाह कीजिए। जी, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी आज सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट से बाहर नहीं आ रहे हैं। उनको मुमकिन गिरफ्तारी का खदशा है और फवाद चौधरी ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी है, जिसमें ये इत्तला की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई तक हिफाजती ज़मानत दे रखी है। ताहम इसके बावजूद पुलिस जो है वो मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। फवाद चौधरी का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्म है उस पर सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद कराए और पुलिस को रोका जाए कि वो उनको गिरफ्तार ना करें। तो ये दरख्वास्त फवाद चौधरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें इत्तला की गई है कि उनको उनकी गिरफ्तारी से रोका जाए। ठीक है अमानत, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर ना करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेरियान वाइट केस के फैसले पर अलामिया जारी कर दिया। अलामिया में कहा गया है कि इमरान खान की नाहली की दरख्वास्त पर फैसला 30 मार्च को महफूज हुआ। कॉज लिस्ट इजरा और फरीकैन को इत्तला दिए बगैर 2 जजेस की राय अपलोड की गई। 2 जजेस की राय अदालती फैसला नहीं। केसेस से मुतालिक 2 जजेस की राय रूल्स के खिलाफ है। केस की दोबारा समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दिया जा रहा है। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेरियन वाइट केस के फैसले पर एलामिया जारी कर दिया है। 9 मई का दिन स्याह बाप के तौर पर याद रखा जाएगा। ISPR के मुताबिक मुनज़्ज़म अंदाज में फौजी तनसीबात और अमलाक पर हमले कराए गए। चेयरमैन PTI को कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। किसी भी मजीद हमले की सूरत में शदीद रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। फौज के संजीदा रिस्पॉन्स ने साजिश को नाकाम बना दिया। ISPR की जानब से रद्द-ए-अमल दिया गया है गुज़श्ता रोज़ होने वाले हमलों पर, और शरपसंद अनासर की जानब से जिस तरीके से हमला किया गया कोर कमांडर हाउस लाहौर यानी जिना हाउस को जिस तरह से नजर आतिश किया गया, तोड़ फोड़ की गई, बकिया मकामात पर हमले किए गए, उस पर रद्द-ए-अमल सामने आया और कहा गया है ISPR की तरफ से कि 9 मई का दिन स्याह बाप के तौर पर याद रखा जाएगा। जिस तरह से मुनज़्ज़म अंदाज में फौजी तनसीबात और अमलाक पर हमले कराए गए वो काबिल मज़म्मत हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जिस तरीके से कल हमने मंजर देखा, शायद दुश्मन जो है उसके तो दिलों में ठंडक पड़ी हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए किसी भी तौर पर यह काबिल फ़ख्र दिन नहीं था। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैंने आपसे अर्ज किया कि ये सरकारी इमलाक पर हमला करना, सरकारी इमलाक को नजर आतिश करना किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। अब कल जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी लोगों ने देखा, और अभी मैं थोड़ी देर पहले बाहर के चैनल में CNN खबरें चला रहा था, तो उसके हिसाब से जो पाकिस्तान का जो इमेज बाहर जा रहा है, और जिस तरह उन्होंने कंप्लीट वीडियो चलाई सुबह अरेस्ट से लेके, इमरान खान के अरेस्ट से लेके, जिस तरह उनको अदालत से अरेस्ट किया गया, उससे लेके नीचे मुख्तलिफ अमलाक पे हमला करने की, फिर अभी खबर आ रही है कि रेडियो स्टेशन पेशावर भी के ऊपर भी हमला हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली हमारे अंदर हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं। दुख की बात है, खासतौर पर मैंने पहले भी आपसे अर्ज की कि कोर कमांडर हाउस जो है उनका ताल्लुक जो है वो जिना हाउस से, कायदे आज़म का वो घर था। तो उसके ऊपर जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है और इस किस्म का हालात डेवलप होते हैं, और माजी में भी आपको पता है भुट्टो साहब के खिलाफ जो मूवमेंट चली थी 9 सितारों, उस वक्त भी लोगों ने यही काम किया था, यही चीज़ हुई थी, बिल्कुल उसी का रिपीट आज नजर आया। उसके अंदर बहुत से सियासत की आड़ में बहुत सारे ऐसे अनासर शामिल होते हैं जिनका मकसद ही पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना होता है। उसमें बहुत सारे चोर और डाकू शामिल थे, जिस तरह बहुत सारी तस्वीरें अभी लोगों के पास मौजूद हैं, आ रही हैं, जहाँ से लोग सामान उठा के लेके जा रहे हैं, बल्कि वो सामने एक ATM मशीन है उसको भी उन्होंने रगड़ दिया। तो वो तो क्रिमिनल इस किस्म की चीज़ें कोई कर सकता है, तो इसके अंदर फिर शरपसंद अनासर में फिर
क्रिमिनली शामिल हो जाते हैं, और ये चीज़ें जो है बहुत बैड इमेज कन्वे करती, बहुत ज़्यादा बैड इमेज कन्वे। और आपको पता है कि इसके बाद जो इफेक्ट्स आते हैं, उसका इफेक्ट सबसे बड़ा असर ये है कि आज आपने देखा होगा कि इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो 5 या 6 रुपए ऊपर चला गया। अब उसको कौन कंट्रोल करेगा? उसका इफेक्ट पाकिस्तान के अवाम पे किस तरह आएगा, मजलूम अवाम पे किस तरह आएगा? क्या उसके ऊपर किसी का कंसर्न है, कोई सीरियस है उस चीज़ के ऊपर, या उसको डिस्कस किया जा रहा है कि डॉलर ऊपर क्यों गया? तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस किस्म के जो आप जो बात कर रहे हैं उसके जो इफेक्ट्स होते हैं डाउन दी लाइन, जब वो कन्वे होते हैं तो वो आपकी मईशत पे भी आते हैं, सोशल सिस्टम पे भी आते हैं, पॉलिटिक्स पे भी आते हैं, पॉलिटिकल कंसल्टेशन पे भी आते हैं, बदनामी पे भी आते हैं, पाकिस्तान की इंटरनेशनल बदनामी पे। अब इंडिया जो चला रहा है चीज़ें, जो मैं सुबह से देख रहा हूँ, तो मेरा दिल, मैं लिटरली आपको कहूँगा कि आई एम रियली आई एम हर्ट वेरी, एवरी पाकिस्तानी मस्ट बी हर्ट, बट वी आर हर्ट वेरी बैडली कि ये क्यों हो रहा है और ये क्यों हुआ, इसको नहीं होना चाहिए था। 1 साल से हम ये सुन रहे थे, रोजाना ये खबर आती थी कि इमरान खान को अरेस्ट कर लिया, फिर वो गए जाते थे, फिर वापस आ जाते थे। अब वो मुकम्मल हो गया, केस एक है उनके ऊपर, वो केस चलेगा, उस केस को चलाना चाहिए। अब उस केस में कुछ और भी ट्रस्टीज हैं, फिर एक बहुत अभी आप मेरी पाकिस्तान में हाल तो ये है कि आपके बहुत सारे सही मैं बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। मुजफ्फर साहब, मैं चाहूँगा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब भी साथ मौजूद, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। मोइन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे मुजफ्फर साहब भी फरमा रहे थे और जो भी संजीदा अनासर हैं वो मजम्मत कर रहे हैं कल के पेश आने वाले वाक़यात पर, आप क्या कहेंगे? और उसको गिरफ्तार करना है तो जाहिर है उसका तरीका ये है कि आप वारंट उनको दिखाएं, सर्व करें वारंट। और ये जब से अगर कहते हैं वारंट 1 मई का निकला हुआ है नैब के केस का, उसके बाद वो लाहौर में भी पेश होते रहे, इस्लामाबाद में पेश होते रहे। तो जिस लोगों को, जिस चीज ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मेरे ख्याल में मुश्तइल किया है, वो तरीका था गिरफ्तारी का। ठीक है मोइन साहब, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सामने आ गई है। सीनियर तहसीलदार मियां ताहिर साहब भी साथ मौजूद हैं। मियां ताहिर साहब, ISPR ने रद्द-ए-अमल दिया अपना, और यकीनन आपने पढ़ा होगा, क्या कहेंगे आप? देखें जी, ISPR ने रद्द-ए-अमल दिया है, बड़ा खुशाइंद रद्द-ए-अमल है, बड़ा एक यकसू होके जो बात की गई है वो है जो होनी चाहिए थी। मैंने गुज़श्ता रात भी आपसे बात कर रहा था, तो मैंने कहा था जब एक बयान चलवाने की कोशिश की गई, जब एक मौक़िफ़ देने की कोशिश की गई, अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश की गई, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि स्टेट ऑर्गन्स जो हैं वो यकसू होते हैं जब कोई ऐसी सूरत हाल हो जो इस वक्त दरपेश है। इस वक्त जो सूरत हाल दरपेश है, अभी जो राजा साहब कह रहे थे कि इस वक्त जो मैसेज इस वक्त जो जा रहा है जो भारत में और जो पूरी दुनिया में, उसको देखा जाना चाहिए। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है, कोई जो रियायत और तहम्मुल जो होता है वो हमेशा रियासत के अमूर तय करने में होता है, रियासत के अमूर चलाने में कोई तहम्मुल नहीं होता। अगर कोई बंदा आपके दुश्मन का मकसद सर्व कर रहा है तो उसके साथ किसी किस्म की रियायत करना बेसिकली दुश्मन को रियायत देने के मुताबिक है। आप देखें आपका मैसेज क्या गया, आपका वकार और आपकी साख क्या है इस वक्त पूरी दुनिया में। आपको इस वक्त म्यांमार और श्रीलंका के मुताबिक ट्रीट किया जा रहा है। इस वक्त अमेरिका कह रहा है कि हम सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं और अमेरिका आप पे बयानबाजी कर रहा है, और आपका दुश्मन क्या कह रहा है इस वक्त, जरा उसको तो सुनिए। ये किस वजह से हुआ है? ये इस वजह से हुआ है कि हमने गैर जरूरी किस्म की हमने रियायत दी, तहम्मुल का मुजाहरा किया। ये क्या तहम्मुल हो सकता है कि आपकी इंस्टॉलेशंस, और वो भी जो आइकॉन है, जो फौज की ऐसी इंस्टॉलेशन है जो दुश्मन का निशाना हो सकती हैं, वो आपके अंदर के लोगों के दुश्मन, जो अंदर से दुश्मन उठा उसका निशाना बनी, तो आप उस पर खामोश रहे। मैं लाहौर में रहता हूँ, मुझे पता है कि जिनाह हाउस में जाने का रास्ता। ठीक है मियां ताहिर साहब, और बाकी दोनों मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना।